Dear viewers, hope you all are good. In this video, we'll travel and see three important places in the Niagara region of Ontario. First, we'll visit the historic Screaming Tunnel that has an interesting legend attached to it. Then we will visit the famous Lundy's Lane, where the historic Battle of Lundy was fought in 1814 between Canadian and the USA forces. We'll share interesting historical facts about this battle with you. And finally, we'll travel to the famous town of Fort Erie that also witnessed another bloody encounter between the Canadian and the USA forces in the same year of 1814. So keep watching to the end to enjoy this informative and interesting video. तो जनाब व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज हम जनाब आपके साथ सैर करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे नायग्रा फॉल्स। तो चलिए जनाब, अल्लाह का नाम लेकर सफ़र शुरू करते हैं। लेट्स गो। Now we are traveling on Highway 403 that is also called QEW or Queen Elizabeth Way. This highway passes close to the towns of Burlington, Hamilton and St. Catherine. And finally, it ends at the USA-Canada border in the Niagara region. At this time, we are very close to Lake Ontario. You can see water on both sides of the road. This is probably the most beautiful part of Highway 403 en route to Niagara. After leaving Highway 403, now we are traveling on a regional road that will lead us to our first destination, the Screaming Tunnel. For your interest, we must tell you that this tunnel has a famous legend attached to it that we'll share in a while. These are the aerial views of surroundings near the Screaming Tunnel. This is a narrow road that leads toward the Screaming Tunnel. You can clearly see our vehicle on this road. The fields and lonely homes look so beautiful from this height. Look at this railway track. At some distance from this place, this railway track passes over the Screaming Tunnel. We'll show you that point once we reach there. तो जनाब, इस वक्त हम पहुंच गए हैं द स्क्रीमिंग टनल, जो पीछे आपको नज़र आ रही है। तो बुनियादी तौर पे ये जो टनल है ये 18वीं सदी में बनी थी और यहाँ से जो ग्रैंड ट्रंक इनकी रेलवे लाइन है वो गुजरा करती थी और उसके बाद फिर सामा उसका रूट इन्होंने चेंज कर दिया। और बहरहाल इस टनल के बारे में जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो एक लेजेंड आप कह सकते हैं, वो ये है कि यहाँ पर एक पॉइंट टाइम में एक यंग गर्ल का रेप हुआ था अनफॉर्चुनेटली, और देन अल्टीमेटली हर बॉडी वॉज बर्न टू रिमूव ऑल सॉर्ट ऑफ एविडेंस। और फिर लेजेंड जिस तरह है वो ये कहती है कि जनाब यहाँ पर अक्सर रात के वक्त उस लड़की की चीखों की आवाज़ें आती हैं। तो बहरहाल हम भी अंदर जाके ज़रा इसको देखते हैं और आई एम श्योर कि ये एक लेजेंड ही है, इसमें किस हद तक ट्रुथ है गॉड नोज, बट और इसके ऊपर से अभी भी रेलवे लाइन गुजर रही है। जी बिल्कुल, ऊपर से अब वो रूट चेंज हो गई, रेलवे लाइन गुजर रही है और ये इसको अंदर से देखते हैं। This is the Screaming Tunnel. But interestingly, we haven't yet heard any scream. तो ये बुनियादी तौर पे जनाब लाइमस्टोन टनल है, ये सारी आप देखें और आप सोच सकते हैं कि 18वीं सदी में आज से 200-250 साल पहले यहाँ पर इसका क्या हाल होगा, आबादी क्या होगी, और डेफिनेटली जो फिर लेजेंड का मैंने जिक्र किया है, इस तरह के वाक़यात ऐसी जगह पे हो सकते हैं। तो फिलहाल हमने तो किसी चीख को नहीं सुना, लेकिन लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ पे उस लड़की की चीखों की आवाज़ें आती हैं। और फिर इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपसे शेयर करूँ, ये टनल को एक सेट के तौर पे यूज़ किया गया था 1983 की हॉलीवुड की फ़िल्म के अंदर द डेड जोन, और वो डेड जोन जो है वो आइडिया यहीं से कैप्चर किया गया था। और अगर आप लोगों को में से जिन लोगों को साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज़ पसंद हैं तो वो ये डेड जोन मूवी को देखें, वो एंजॉय करेंगे और उसको इस टनल के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो चलें ना, फिर हम चलते हैं आगे, कोई और जगह को एक्सप्लोर करते हैं। ये देखें, यहाँ पे किसी के ये शूज़ पड़े हैं, लगता है रात को यहाँ कोई आया था और वो स्क्रीम सुन के शूज़ यहाँ छोड़ के भाग गया।
ओके। Now we are heading towards the famous Lundy's Lane. This is the beautiful entrance of Lundy's Lane on the road. You can see the date of Battle of Lundy as July 25, 1814 and carved images of the battlefield. Now we are heading towards a mound that was the actual battlefield in 1814. This mound is preserved as a monument. Canadian General Brown had deployed all his artillery over this mound to thwart the onslaught of US troops. Several commemorative plaques are seen over this place to remind us of this historic battle. जनाब इस वक्त हम उस हिल टॉप के ऊपर खड़े हो गए। यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल गॉर्डन ने अपनी गन्स डिप्लॉय की थी अमेरिकन फोर्सेस को थ्वॉट करने के लिए। ये पीछे आप देख रहे हैं कि लंडी लेन बैटलफील्ड का जो है उन्होंने वो जो इंसिग्निया भी बनाया है, जुलाई 25, 1814 उस पर डेट भी लिखी है। और बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो आपको चर्च के अंदर आपको एक मोनूमेंट भी नज़र आ रही है। ये प्रॉब्ली सब उन लोगों के लिए बनाई गई है जो इस जंग में मारे गए, जिसे मैंने आपको बताया कि कमो बेश तकरीबन 2000 के करीब जो अशखास थे इस जंग के अंदर मारे गए। दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द deadliest battles ever fought between American forces and the Canadian forces। और अल्टीमेटली फिर जो अमेरिकन थे दे हैड टू विड्रॉ, और फिर ये सारे का सारा जो एरिया है नायग्रा का एरिया ये कनाडा के कब्ज़े में आ गया। नहीं उस माने में ज़ाहिर बात है यहाँ क्योंकि यूके का रूल था, तो ये यूके और कनाडा की यानी जो है ये एरिया जो है उनकी जो जुरिस्डिक्शन में फिर ये आ गया, फॉल कर गया, और अमेरिकन ने यहाँ से फिर परमानेंटली विड्रॉ कर दिया। तो जनाब ये जो प्लैक आप देख रहे हैं ये 200th एनिवर्सरी जो है बैटल ऑफ लंडीज़ लेन की, जो 1814 और 214 के दरमियान का जो टाइम पीरियड उसके रेफरेंस से ये इन्होंने यहाँ पे किया। ये सिटी ऑफ नायग्रा जो फॉल्स है उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि जनाब यहाँ पर ये हिस्टोरिक बैटल हुई थी। और अब तो यहाँ पे आपको ये खूबसूरत फूल रंग बिरंगे नज़र आ रहे हैं, और वो मेरे बैकग्राउंड पर भी देखें बड़े खूबसूरत फूल हैं। लेकिन कभी सोचें कि यहाँ पर उस वक्त सैकड़ों लोगों की जानें गई होंगी, यहाँ पर कितना खून बहा होगा एक पीस ऑफ लैंड के लिए। तो तारीख़ हमें बहुत कुछ इस तरह के सबक देती है कि जनाब इंसान पीस ऑफ लैंड के लिए या इस तरह की जुरिस्डिक्शन के लिए कितना खून बहाता है, और फिर बाद में उसको अपनी फ़तह को याद रखने के लिए फिर वहाँ पे जनाब ये फूल लगा के और उनको इस तरीके से ये जगह बना के कमेमोरेट करता है, ताकि आने वाली नस्लों को एटलीस्ट पता हो कि माजी में यहाँ पर क्या हुआ था, और वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करें जिन लोगों ने अपनी जानें दी थी इस जगह को रिटेन करने के लिए, ताकि अमेरिकन फोर्सेस इस पर कब्ज़ा ना कर सकें। तो डेफिनेटली जनाब ये बड़ी एक हिस्टोरिक बैटल थी जिससे हमने बात की, और प्रॉब्ली वन ऑफ द डेडलीस्ट बैटल जो हिस्ट्री के जो क्रॉनिकल्स जो हमें इसके बारे में बताते हैं। तो चलें थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करते हैं इस हिल को जहाँ पर ये जंग हुई थी। तो यहाँ पर अल्टीमेटली आपको तय सारी कैनन्स लगी हुई थी। तो सोचें इस वक्त ये छोटा सा हमें बड़ा वेल इस्टेब्लिश्ड एरिया नज़र आ रहा है, घर बने हुए हैं, इर्द गिर्द चर्च भी है, लेकिन उस वक्त ये सोचें एक छोटा सा हिल होगी, स्ट्रेटजिकली इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी कि आपने एक हाई पॉइंट अचीव कर लिया है, और आपका जो एनिमी है क्योंकि वो आपसे नीचे है तो यहाँ से आप उसको बेहतर तरीके से डिफेंड कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि जंग में दाई बता आप अगर किसी हाई पॉइंट पे हो तो आपको वो एक स्ट्रेटजिक या टैक्टिकल एज आपको मिल जाती है। और अब देखें ना ये कितने खूबसूरत फूल और सब कुछ है उसी चीज़ की याद को ताज़ा कर रहे हैं कि जनाब यहाँ पर एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक इवेंट हुआ था। Now we are heading towards Fort Erie, that is approximately 31 kilometers from the town of Niagara Falls. Niagara River works as an international border between Fort Erie, Canada and the USA. ओके जनाब इस वक्त हम ओल्ड फोर्ट एरी में खड़े हैं, और आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये नायग्रा रिवर है, और अक्रॉस नायग्रा रिवर आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
नज़र आ रहा है। तो अभी तो हम देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत बड़ा पीसफुल सा बॉर्डर नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम माजी में चले जाएं हिस्ट्री में तो 1814 में यहाँ पर सितंबर के महीने में एक बहुत डेडलीस्ट बैटल जो सी है वो हुई थी बिटवीन ब्रिटिश फोर्सेस एंड कैनेडियन ऑन द वन साइड एंड ऑफ कोर्स यूएस ट्रूप्स ऑन द अदर साइड। और फिर उस जंग के नतीजे में अल्टीमेटली फिर एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन अमेरिकन फोर्सेस एंड ब्रिटिश फोर्सेस, गेंट जो बेल्जियम की एक पोर्ट सिटी है वहाँ पर, और उसके तहत फिर जो ट्रुप्स है वो अपनी भी जगह से विड्रॉ कर गए और फिर ये एरिया परमानेंटली जो है कनाडा के तसल्लुत में आ गया। तो डेफिनेटली वी कैन फिगर आउट कि इस जंग में बताया गया कोई 3000 के करीब जो लोग हैं वो मारे गए थे। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एक मार्का था। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो आप मेरे राइट साइड पे देखें कितने खूबसूरत से घर बने हैं, ये जो पार्क है कितना ज़बरदस्त है, और रिवर का यहाँ पे व्यू देखें और आप जरा इमेजिन करें फिर माजी में जाके कि यहाँ पर जनाब जो ट्रुप्स हैं दोनों साइड के वो खड़े हैं और फिर हज़ारों लोग जो उनसे हैं वो उनका कत्ल हो रहा है, खून रेजी हो रही है। तो शायद हम कह सकते हैं कि जो पीस है, जो अमन है, वो इंसानी ज़िंदगी को दवाम भी देता है, सुकून भी देता है, ज़ाहिर से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव करता है। और जो जंग व जदल होते हैं वो डेफिनेटली सिर्फ़ और सिर्फ तबाहकारियाँ ही लेकर आते हैं। तो जब इस तरह के बॉर्डर को, स्पेशली जब हम कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर को देखते हैं जो 5500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, प्रॉब्ली वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर्स इन द वर्ल्ड, और ये बिल्कुल एक पीसफुल बॉर्डर है। यहाँ पे कभी भी कोई बॉर्डर स्केरमिश नहीं अब हुई मॉडर्न टाइम्स में, और ये पीसफुली को एग्जिस्ट कर रहे हैं और अपने जो रेजिडेंट्स हैं, जो अपने सिटीजन्स हैं, उनको एक बेहतरीन क्वालिटी ऑफ लाइफ दे रहे हैं। आप देखें लेफ्ट साइड पे यहाँ पे बोटिंग हो रही है, और मज़े की बात आप देखें ये जो आधा रिवर है नायग्रा रिवर, ये अमेरिका के यूरिसडिक्शन में फॉल करता है और आधा जो है कनाडा की, और दरमियान में इसकी कोई पार्टीशनिंग ऐसी नहीं की गई जो हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री में शायद यहाँ पे कोई बैरियर बना दिए गए होते रिवर के अंदर ही, और शायद वो कोई मिलिट्री पेट्रोलिंग ट्रुप बोट्स होती हैं जो फिर रही होती हैं और लोग यहाँ पर दहशतज़दा और खौफज़दा होते, जो अनफॉर्चुनेटली कश्मीर में, क्योंकि हम वी बिलोंग टू पाकिस्तान, तो जो पाकिस्तान और इंडिया के लोग हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कश्मीर में जो इतनी खूबसूरत जगह है वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर क्या सिचुएशन होती है। ये पीछे जो ब्रिज है ये कनाडा और अमेरिका के बीच में, और ये मेनली ट्रक्स का ब्रिज है। ट्रक्स यहाँ से क्रॉस करते हैं जो ट्रेड के लिए आते और जाते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, सी ईगल्स बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। बाकी लोग यहाँ वॉक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मौसम विंड के बावजूद शदीद गर्मी है, इतनी स्वेटिंग हो रही है कि कोई इंतहा नहीं, क्योंकि विंड एकदम रुक जाती है तो काफ़ी गर्मी है आज। ओके ना, मेरे लेफ्ट साइड में देखें ये कितनी खूबसूरत मोनूमेंट है, और उस पर जो इनफैक्ट जो ऊपर अल्फाज लिखे हैं वो बहुत गौर तलब हैं। दे गेव देयर टुडे फॉर आवर टुमारो, और ये बुनियादी तौर पे किन लोगों को कह रहे हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो कैनेडियंस मारे गए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, कोरियन वॉर में, और फिर फाइनली अफ़गानिस्तान वॉर में जो 9/11 के बाद शुरू हुई। तो बुनियादी तौर पे जैसा हमें पता है कि ये जो एरिया जहाँ पे हम खड़े हैं ओल्ड फोर्ट एरी, और मेरे राइट साइड पे आप देखें जो नायग्रा रिवर जिसकी हम बात कर रहे हैं कितना भी पीसफुल लुक दे रहा है। तो यहाँ पर किसी ज़माने में बहुत शदीद जो जंग है वो लड़ी गई थी अमेरिकन और ब्रिटिश फोर्सेस के दरमियान, और यहाँ पे अगर इस साइड पे आप देखें तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो लोग जो मारे गए सोल्जर्स या दूसरे लोग, तो उनमें से चंद इंपॉर्टेंट लोगों के नाम जो उनसे हैं वो यहाँ पर सारे के सारे लिखे गए हैं, और नीचे एंड में वो कह रहे थे नेम लिवेथ फॉर एवर मोर। तो ये बुनियादी तौर पे ये भी एक ट्रिब्यूट है उनकी उन लोगों को जिन बेचारों ने यहाँ पे जंग लड़ते हुए जान दी। और हम देखें ये जो एक बड़ी एक और मॉन्यूमेंट जो बनी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये जंगें और ये चीज़ें बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं किसी भी कंट्री या नेशन की लाइफ में, तो फिर बाद में उनको कमेमोरेट किया जाता है, यादगार के तौर पे उन लोगों को याद रखा जाता है जिन्होंने उस जंग में हिस्सा लिया और अपनी जानें दी। तो यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर भी वो बात की जा रही है, लेट देयर बी पीस। तो इसका मतलब कि जो अमन है बुनियादी तौर पे वो हर मुल्क या हर कौम के लोग उसके ख्वाह होते हैं,
और अब यहाँ पर ये जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो क्या है कि ये जो प्लैक है ये नायग्रा पार्क्स कमीशन ने यहाँ पर इसको प्लेस किया और ये एलोंजो सी मैथर कोई शख्स है जिसने कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दरमियान जो फ्रेंडशिप के लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और स्पेशली ये फ्रेंडशिप वीक जो उनसे फोर्ट एरी के टाउन में मनाया गया था अगस्त 1978 में। तो यहाँ से देखें आपको वो ब्रिज भी ऊपर नज़र आ रहा है, इस वक्त बिल्कुल पीसफुल तरीके से ट्रेड जो है दोनों मुल्कों के दरमियान चल रहा है। तो इना मेरे बैक पे ये सारी जो मोनूमेंट है उसका मेरे सामने पूरा एक व्यू आ रहा है जिसके सामने जो है ये एक आप ये देख रहे हैं जिसके ऊपर टॉप पे एक स्टैचू भी है और फिर आपको एक तरफ लेफ़्ट साइड पे कनाडा का फ्लैग नज़र आ रहा है, राइट साइड पे प्रोविंस ऑफ ओंटारियो का फ्लैग है और पीछे भी वो बिल्डिंग बनी है, कुछ पे भी स्टैचूज बने हुए हैं। और राइट साइड पे आप देखें तो जनाब कितने खूबसूरत तरीके से नायग्रा रिवर फ्लो कर रहा है, उसके ऊपर ब्रिज है और ये एक पीसफुल ट्रेड चल रहा है अमेरिका और कनाडा के दरमियान। बस जनाब ये जगह बड़ी हिस्टोरिक भी है और बहुत खूबसूरत भी है। चलें तो यहाँ से चलते हैं नायग्रा फॉल्स के कुछ और जो अजायबात कह दें आप या खूबसूरत जगह जो उनसी हैं उनको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। सो लेट्स गो।